So thank you so much यहाँ आने के लिए. And now I'll answer your question as to how I am feeling. वैसे आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा और अब मैं कहूँगा भी तो अब लोग कहेंगे कि यार ये ब्रांड एम्बेसडर है. जब पहली बार मुझे ये ऑफर आया कि InDrive wants to collaborate with me, they want to have me as their face, and thank you so much for that firstly. I immediately recognized one thing कि हमारा जो value system है या जो हमारा world view है या जो हम जिस तरह से करता हूँ या जो भी मतलब हाल ही में 12th फेल की अगर हम बात करें या उसके पहले भी जो भी मतलब बीच में कोशिश ये रहती है कि to go out there and represent the common man, to represent the common people, to represent their struggles, to represent their aspirations. तो जब इन सबसे मेरी बात हुई थी InDrive की पूरी टीम से, जब मुंबई में हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने पहली बार कोई ऐसा कॉन्सेप्ट सुना था जहाँ पे आप एक्चुअली लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं. हमने अभी देखा एड में कि आप अपना खुद का किराया ऑफर कर सकते हैं. इट इज एक्चुअली फेयर प्राइसिंग एंड नॉट FARE बट FAIR. मेरे हिसाब से हम सब तमाम ऐप्स के शिकार बन चुके हैं. और ख़ास तौर में जहाँ से मैं आता हूँ बम्बई में जो बारिश होती है 4 महीने, वो 4 महीने तो आप भूल ही जाइए जो हालत होती है लोगों की. एंड when I understood their value system, when I understood what they wanted to do with this app, how they wanted to empower people, give it back to people in their own little way, I immediately came on board. I said कि ठीक है यार, I think हमारा value system same है. हम थोड़ा बहुत लोगों को देना चाहते हैं जिनकी वजह से हम हैं. तो I came on board and it's such a fabulous young team. Very excited, very happy to be collaborating with them, पता है, because yeah, and I hope this association sort of can go longer than I hope we stick together and I hope we can go out and give it back. As I told you in the beginning also, InDrive, we just provide a platform for the people to connect, the drivers as well as our passengers to connect. So here we do not decide the fare, right? So it is the passengers and the drivers who are deciding the fare for the particular route. So in when you are at a route and you decide that you want to go to a different route, then again the driver is with you. You decide with him mutually, and if the driver denies to go to that route, he has the full right to deny it because that was not pre-decided, it was not pre-booked. But even at the end of the day, our driver partners are human beings, so they also they understand that there is, for example, if there is a medical emergency or there is something emergency has come up and you want to change the route, they do adjust, but then both of them have to agree on the additional fare that will be charged. So yes, if the route is changing, if you are going to a different place, then you have to pay for the extra kilometers that the driver has to go. Point B is fixed, then the fares will not change. If your point, but if you decide that there is a point C also which is coming in between, that you want to go via a particular route, then yes, the fare might change. But if your pick up and drop points remains the same, but there is, for example, traffic in one route, so you decide to go via a different route, the fares will not change. और हम सब ने ये कहावत सुनी है, slow and steady wins the race, right? और मैं तो बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ इस चीज़ में कि it is better to have a slow and steady but a robust success rather than an overnight sensation, and then वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता है. एंड थैंक यू सो मच, आपने ये जो एनालॉजी बनाई है हम दोनों के बीच में, शायद इसी वजह से वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन दिस टुगेदर. सिस्टम सिमिलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है. और मैं सिर्फ नैरो डाउन करके ये नहीं कहूँगा, प्लीज़ अलाउ मी इफ आई कैन सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड बियॉन्ड InDrive. हमने बहुत सारे ऐप्स देखे हैं इन दिस पिछले 10-15 सालों में. जो स्टार्टअप्स का जो एक कल्चर हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली ऐप ही चलती है. आप सोचते हैं ये है कि ये मेरी कन्वीनियंस के लिए है. अगर आप कोई भी ऐप को किसी भी कहीं से भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करेंगे, वो यूटिलिटी के सेक्शन में आता है. अब यूटिलिटी क्या करता है? आपकी चीज़ें आसान करता है, आपकी लाइफ आसान करता है,
लेटर यू रियलाइज कि यार ये तो मुसीबत पाल ली, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू नो द कंज्यूमर डज नॉट नो अबाउट. तो वो एक्चुअली बाय द एंड ऑफ इट इट सीम्स लाइक इन हाइंडसाइट इट सीम्स लाइक अ वेब. तो यहाँ पे इनके इंटेंशंस बड़ी क्लियर है कि यार ऐप की नहीं चलेगी, आपकी चलेगी. तो आप खुद डिसाइड करेंगे. और जैसे मैम ने कहा, बहुत ही कमाल की चीज़ ये कही कि वो भी इंसान है. यू नो, इक्वालिटी में हम सब विश्वास रखते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमने समाज में देखा है कि जो एक सो कॉल्ड लोअर इनकम ग्रुप से लोग आते हैं, हम उनको इल ट्रीट करते हैं, चाहे वो फिर बिल्डिंग का वॉचमैन हो या फिर कोई ड्राइवर हो. हमको ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि अरे यार ये तो लोअर तबके का आदमी, इसके साथ हम कैसे भी बात कर सकते हैं. मैं आपको आश्वासन देता हूँ, यहाँ वैसा नहीं होगा. यहाँ पे आपको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, कस्टमर और ड्राइवर को और सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा. तो कमिंग बैक टू द पंच लाइन, और हम सबको बड़ी पसंद है ये पंच लाइन, अब ऐप की नहीं आपकी चलेगी. द पावर रेस्ट्स इन योर हैंड. शहर का एग्जाम्पल दिया, बारिश में लोग परेशान हो जाते हैं सर. देयर आर ड्राइवर्स जो मतलब फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक 30 seconds more sorry 30 seconds more कि यू नो फॉर एग्जाम्पल बारिश के टाइम पे अचानक फेयर्स बढ़ जाते हैं. मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैं 15 मिनट बुक करा के वेट कर रहा हूँ घर पे, मुझे जाना है कहीं, वो राइड कैंसिल हो गई अपने आप ही. क्योंकि आप फिर फोन करके पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे. वो कहते हैं अरे वो मेरा क्लोजिंग है, मेरा घर उस साइड नहीं है, मेरे को उस तरफ जाना है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया. तो ये सारी चीजें दिक्कत देती हैं. और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो रोजमर्रा के जीवन में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. एंड आई एम श्योर दैट InDrive इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रिज दैट डिस्पैरिटी, ब्रिज दैट गैप. एंड जैसे आपने खुद कहा कि स्लोली एंड स्टेडीली दे हैव डन फिनोमिनली वेल इन दिल्ली, एंड आई एम श्योर दे आर रियली गोइंग टू डू मच बेटर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री आल्सो, यू नो, स्लोली. या आ रहा हूं आपको सर. मैं सच अगर कहूं आपसे तो कैब में मैं एक बार गया हूं, लेकिन ऑटो में मैं हर दूसरे तीसरे दिन घूमता हूं. क्योंकि कन्वीनियंस है ये. मुझे कोई सोशल स्टेटस या सोशल सिंबल या एक स्टेटस सिंबल नहीं लगता है ये. मैं अगर मैं थोड़ी लिबर्टी लेके ये कह सकता हूँ कि मैं स्कूटी भी है मेरे पास, बाइक भी है मेरे पास, गाड़ी भी है मेरे पास, लेकिन कई बार जब मुझे वक्त पे पहुंचना होता है तो मुंबई मेट्रो भी लेनी पड़ती है और कैब भी लेनी पड़ती है, ऑटो भी लेना पड़ता है. तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी सर. मैं भी हाल ही में मेट्रो से ट्रैवल करके आया हूँ. मेरे जो प्रोड्यूसर हैं राजकुमार हिरानी, उनका ऑफिस मेरे घर से अगर बाय रोड जाऊँ तो मुझे 2 घंटा लगता है. मैं मेट्रो लेके जाता हूँ तो मैं 20 मिनट में पहुँचता हूँ सर. तो सुविधा है सर. सुविधा तो है सर, लेकिन एक एक्टर के लिए मेट्रो में ट्रैवल, देखिए मेरे लिए ये नॉर्मल चीज़ है ये. एंड ये लोगों को लगता है, जो खास तौर पे थर्ड पर्सन होते हैं जिनको पता नहीं है. लोग परेशान नहीं करते आपको, कोई परेशान नहीं करता है. लोग आपको प्यार करते हैं, आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहते हैं, आपके साथ 2-4 तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं. और जिन लोगों की वजह से आप हैं, अगर उनको आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ये बहुत गलत बात है. तो ये परेशानी नहीं होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिव ड्यूटी है आपकी. आज लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर वो मेरे साथ 2 मिनट बात करना चाहते हैं तो मेरा सौभाग्य है. तो क्यों परेशानी, कोई वो मैं सर से कहूँगा कहने. लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि when the driver and the customer are given the power to negotiate, कि पॉइंट A to B का जो आपने सवाल पूछा था, पॉइंट A से B जाने के लिए इतना पैसा है, वो एम्पावरमेंट आपको कोई और ऐप नहीं दे रही है. तो दैट इज वन वेरी यूनिक रियलिटी. इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, दिल्ली NCR में खास तौर पे हो रही हैं. तो वो रियलिटी है वेयर द ड्राइवर एंड द कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू नेगोशिएट बिटवीन देमसेल्व्स. एंड बाकी का जो है आई एम श्योर कि सर बताएंगे आपको.